हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, I'm going to discuss the revision test paper that has been released by the ICAI for upcoming May 23 attempt for CA Inter objective questions of income tax. Now, before directly going on to the questions, let us first talk about the study material that will be relevant for us. So, वैसे तो they have uploaded the module and we have also discussed all the amendments. If you remember, we have discussed a separate video in which we have discussed all the amendments that are applicable for the May 23 attempt. I'll share the link with this video of that amendment video as well. So you can just go through that video first and then we can come for the RTP revision video. This can also be done. Now let us first talk about which material is relevant. So income tax law as amended by Finance Act 22. So आप लोगों के लिए जो करंट बजट है वो रेलेवेंट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स को कि अभी जो बजट आया वो अभी जो अमेंडमेंट्स में वो हमें पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं. सो नहीं पढ़ने हैं. लास्ट फाइनेंस एक्ट जो होगी वो फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल ऑन असेसमेंट ईयर 23-24. सो our relevant assessment year is 23-24, including significant notifications and circulars up to 31st of October 2022 is applicable for May 23 examinations. So अपना assessment year ये है. May 22 study edition is based on the provision as amended by Finance Act 22 and significant notifications up to 30th of April, and hence notifications and circulars issued between May and October have been hosted at a specific location. So we have already discussed all those circulars notifications which have been given after the 1st of May 2022 and between 31st of October. That is again given in a separate video. So let us start the question and answers. Now before directly starting, I'll just give you one, two tips to be kept in mind. Whenever you are solving any question, especially in income tax, you have to pay a lot of attention to read the question very properly. Okay, बहुत ही छोटे छोटे से points होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी हमारा जो क्वेश्चन है वो मिस हो जाता है या कुछ गलती हो जाती है हमसे. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस चीजें क्वेश्चन में ही होती है, हमारा ध्यान नहीं जाता है. ठीक है. So the very first thing, important thing, and especially in case of MCQs, is that you pay attention to each and every word of the question. Now इसके दो reasons हैं. पहला तो MCQ में आपको स्टेप मार्किंग नहीं है, क्योंकि अगर आपका फाइनल आंसर सही आया तो मार्क्स हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. हो सकता है आपने आधा क्वेश्चन सही किया, फिर कुछ इंटरप्रिटेशन गलती हुई और फिर आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो गया. सब्जेक्टिव होता तो मार्क्स मिल जाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एमसीक्यू में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये मैं हमेशा बताती हूँ जब जब मैं एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, वेदर इट इज फॉर सीए और सीए स्टूडेंट्स, that many a times you may find that you have done a mistake, but then also your answer is there in the option. आपके एमसीक्यू में वो ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन वो सही ऑप्शन नहीं है. तुमने जो सॉल्व किया, आंसर आया, मैच हो गया. अब आप जब आंसर मैच हो जाता है तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, अरे वाह चलो आंसर मैच हो गया, टिक करो आगे बढ़ो. वहां पर तो करेक्ट आंसर की शीट होती नहीं है हमारे पास आंसर क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पर. सो दिक्कत क्या हो जाती है दैट नॉर्मली व्हेन क्वेश्चन जो आप बनाते हो, जैसे आई आल्सो प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स, I know what are the basic mistakes students can commit. That is what I always point out when I teach or when I make any videos कि ये गलतियां होती हैं, common है, मत करो, है ना. Because through that particular experience we have now got to know that what are the common mistakes that students are like making. तो what they do, they assume कि अगर स्टूडेंट ने ये वाली चीज गलत करी तो उसका आंसर ये आएगा, और फिर ये वाला आंसर आपको ऑप्शन में डाल देते हैं. जैसे मान लो टैक्स में सेस लगाना भूल गए, इट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच वी कमिट. तो एक आंसर आपको मिल जाएगा कि कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी में एक होगा विदाउट सेस, एक होगा विद सेस. तो अगर आपने सच में भी आप सेस लगाना भूल गए हो तो आपका आंसर तो मैच हो जाएगा, बट वो सही नहीं होगा. गेटिंग द पॉइंट. सो इसीलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्स ऑब्जेक्टिव्स and that how to read, how to interpret and how to solve, everything will be covered. चलिए let us start. Case scenario 1. First, Kishore and Sons is a dealer of coal. Okay, coal. ठीक है. Its turnover for the financial year 21-22 was 12 crores. The state government of Hyderabad granted a lease of coal mine to Kishore and Sons on 1st of May 2022 and charged 11 crores for the lease.
Kishore and Sons sold coal of 95 lakhs to Messrs BAC company for the during the previous year 22-23, and Messrs XYZ purchased coal of 55 lakhs from Kishore and Sons for trading purposes in July 22. मतलब इन्होंने दो लोगों को सेल करा है, किशोर एंड सन्स ने दो लोगों को सेल करा है, एक है बीएसी, एक है XYZ, ठीक है। बीएसी को कितने का सेल किया है हमने? बीएसी को हमने सेल किया है 95 lakhs का, और इसको हमने सेल किया है 55 lakhs का, और हमारा पिछले साल का टर्नओवर था 12 करोड़। हमेशा ध्यान रखो हमारे लिए रेलेवेंट हम कौन से पर्टिकुलर ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द प्रोविजंस फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर इन जुलाई 2022 इन्होंने किसके लिए खरीदा है? कोल ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। टर्नओवर ऑफ मेसर्स, इसका पर्पस नहीं दिया है अभी, पर इसका पर्पस इन्होंने दे दिया है ट्रेडिंग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टर्नओवर ऑफ मेसर्स XYZ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 12 करोड़, तो XYZ का टर्नओवर था 12 करोड़। और हमारे दूसरे कौन है? चलो अभी उनका नहीं बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नहीं दे दिया है ना, किशोर एंड सन्स का 11 करोड़ 12 करोड़ है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, पैन इज ड्यूली फर्निश्ड बाय बायर एंड सेलर टू ईच अदर, तो पैन वाला प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत आपको हिंट आया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। द प्रोविजन रिलेट्स टू TDS TCS सेक्शंस, है ना। देखो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, टर्नओवर वगैरह दिए हैं 10 करोड़ के ऊपर है ना। फिर आप सेल कर रहे हो किसी को, सो थोड़ा सा क्वेश्चन से कोशिश करो प्रोविजंस को आइडेंटिफाई करने की। तो TDS TCS के प्रोविजंस हमको काम में लाने हैं। पैन इज ड्यूली फर्निश्ड, यहाँ से और एक हिंट मिल गया। डिटेल्स ऑफ सेल टू एंड पेमेंट्स फ्रॉम मेसर्स BAC बाय किशोर एंड सन्स आर एज फॉलोज, मतलब BAC और किशोर एंड सन्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको दिए हुए हैं, कब रिसीट हुआ, कब पेमेंट हुआ, ठीक है। टर्नओवर ऑफ BAC वाज 11 करोड़, ठीक है। BAC का टर्नओवर वाज 11 करोड़। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? द अबव अमाउंट्स वर क्रेडिटेड टू किशोर एंड सन्स इन द बुक्स ऑफ BAC कंपनी ऑन द डेट ऑफ सेल। जैसे ही डेट ऑफ सेल हो रहा था तो हम बुक्स में क्या कर रहे थे? रिकॉर्ड कर ले रहे थे, ठीक है। हम क्रेडिट कर ले रहे थे हमारी बुक्स में। किसकी बुक्स में? BAC की बुक्स में। Messrs BAC company furnishes a declaration to Kishore and Sons that the coal is to be used for generation of power. Very good point. This question is from, see, and I always say this in CA examinations, that when you are preparing for the examinations, obviously हम थोड़ा सा ABC एनालिसिस करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से कि हम लोग ना चीजों को छोड़ देते हैं, कि कोई हम पर्टिकुलर टॉपिक ही नहीं पढ़ते हैं कि यार ये तो आ ही नहीं रहा है तो छोड़ो, ये तो एग्जाम में पूछ ही नहीं रहे हैं इस चैप्टर में से, तो ये चैप्टर में थोड़ा ऊपर ऊपर से देखते चले जाएंगे। नेवर डू दैट। whether it is inter, whether it is final, your entire syllabus is having equal importance, equal probability of being asked. Obviously you can have an idea depending on your past examination paper, but when they sit to prepare a new paper, it is not necessary कि base वही रहेगा, क्योंकि कोई blueprint नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो प्रोविजंस हम अभी डिस्कस करेंगे, दीज आर क्वाइट अनयूजुअल काइंड ऑफ प्रोविजंस। हाँ, इसमें अमेंडमेंट है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। एज आई ऑलवेज से that whenever there are any amendments, whenever there are any new circulars given, in that case that particular topic becomes important. but फिर भी ये amendment भी ऐसा है थोड़ा सा जो होता है ना हम लोग की, यार ठीक है चलो ये इसमें से तो क्या ही पूछेंगे, but no, that is to be kept in mind कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि कोल यूटिलाइजेशन के लिए हम कोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो सॉरी, पावर जनरेशन के लिए। चलो, first, based on the above facts, choose the most appropriate answer in question number 1 to question number 5. Who is required to deduct or collect tax at source in respect of lease of coal mine by the state government to Kishore and Sons? अब TCS में एक section होता है, if you are giving on lease basically a quarry, mine or parking lot, अगर आपको वो section याद आ रहा हो, so in that particular case, that is 206C1C, the rate of TCS is 2% if you are giving something on lease. The person granting lease or license for mine or quarry और पार्किंग लॉट, हमारे केस में माइन है, कोल माइन को लीज पे दिया जा रहा है, तो सरकार जो है वो आपको मतलब उसके ऊपर TCS की लायबिलिटी आ जाएगी. So when that particular transaction will be undertaken, TCS is going to be levied. So what would be the answer? State government of Hyderabad is liable to collect tax at source or 2%. State government of Hyderabad is liable tax to collect at source 0.1%.
नहीं, 2061H का केस नहीं है। वो क्या हो रहा है, जब हम करोड़ और 50 लाख से ऊपर पे जाते हैं तो हमको फटाक से 2061H और 194Q ही क्लिक होता है, लेकिन टीसीएस में और भी सेक्शन है। सो ये हमारा वो वाला सेक्शन नहीं है। लाइबल टू डिडक्ट टैक्स अगेन नॉट 194Q, नीदर इट इज नो, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर वुड बी ए, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इज लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 2%। सो आप देखो क्या हो रहा है, हम ग्रांट कर रहे हैं लीज। कौन ग्रांट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर रहा है लीज। तो जब किशोर एंड सन्स पेमेंट करेंगे तो उसके साथ क्या पे करेंगे? गवर्नमेंट को टीसीएस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। लेट अस क्रॉस चेक इट फर्स्ट, देन आगे बढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट का हमारा है ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर A1 का ए। चलो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2। Is Kishore and Sons required to collect tax at source in respect of the sale transactions with BAC? If yes, when and what is the amount of tax to be collected? Now see, in this particular case, first of all, let us first understand which provisions are being applicable. Okay, tax collected at source का केस है हमारा, तो हमें ये देखना है पहले तो कि हमारे ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं नॉर्मल हमारे सेल की, तो हमारा केस हो जाता है 2061H, है ना। और हमको क्लियरली ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा केस है जिस पर टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई ही नहीं होने वाले हैं, इफ इट इज गिवन इन पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज 2061 में, अगर ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, दिस ट्रांजैक्शन हैज टू बी केप्ट आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ टीसीएस, 2061H उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमको चेक तो ये करना है कि 2061H का एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यस, आपके सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, 50 लाख के ऊपर का सेल है, टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे स्पेसिफिकली बोला गया है दैट नो, यू आर, दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज, द डिक्लेरेशन स्टेट्स दैट दिस इज फॉर द generation of power, the coal is being used for generation of power, this specifically comes out of the purview of TCS and therefore you are not liable to collect any tax. Secondly, in this case it is direct application of 194Q, तो हमको सीधे सीधे 194Q लगाना है, टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा नो, किशोर एंड सन्स इज नॉट लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस। ये सारे आंसर्स देखने की जरूरत नहीं है, अगेन आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड का यू हैव डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Is Kishore and Sons required to collect tax at source in respect of sales transactions with Messrs XYZ Limited? If yes, what is the amount of tax to be collected? Now, again, when you talk about sale, in this case, again हम लोगों का ध्यान किस पर जाएगा? 2061H पर जाएगा, है ना। पहली चीज, ये वाला पॉइंट हमने 2 में भी बात करी और 3 में भी बात कर रहे हैं, दैट ये दोनों को एक बार के लिए देख करके हमको लगता है कि ये दोनों हम एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे हैं 2061H की। बट इफ वी थिंक वेरी प्रॉपरली, अगर आपको टीसीएस का जो पहला वाला हमारा पॉइंट है दैट इज 2061, जो मैंने यहां पर भी रेफर किया, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर हम लोगों को एक लिस्ट दी होती है कि आपने अगर ये वाली सारी आइटम्स को सेल किया है, जैसे तेंदू लीव्स एक्सेट्रा, उन आइटम्स पर आपको टैक्स कलेक्शन का इतने इतने रेट से एप्लीकेबिलिटी रहेगी, है ना। दैट इज व्हाट वी डिस्कस इन 2061। अगेन दिस इज अ सेक्शन विच इज क्वाइट अनयूजुअल, आज नॉर्मली आज तक इस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे हुए नहीं है। वहां पर अगर आप देखोगे तो मिनरल्स में आपको एक दिखेगा कोल का सेल। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि स्पेसिफिकली किसी एक सेक्शन में कवर हो रहा है, 2061H का जनरल प्रोविजन उसको वैसे भी अपने अंदर इनकम पास नहीं कर सकता। 2061H इज अ जेनेरिक सेक्शन। तो अगर टीसीएस का कोई स्पेसिफिक सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि कोल की सेल पर हमारा कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है? 2061, तो आप उसको 2061H में वैसे भी कंसिडर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी अदर फैक्ट, जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो जैसे यहाँ पर हम अगर देखें तो अगेन जैसे मैंने बोला कि पढ़ते से ही हमारे दिमाग में 2061H आ जाता है कि 50 lakhs
10 crore 11 crore that they have done on purpose to confuse us. एंड देखो आप ऑप्शंस भी आपके मैच हो जाएंगे क्योंकि 0.1% से जो आंसर आएगा वो भी इसमें दिखेगा आपको. लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि what is the particular सेक्शन दैट इज एप्लीकेबल. तो क्योंकि ये सेल कोल का हो रहा है और ट्रेडिंग पर्पसेस से हो रहा है, हम आ जाएंगे हमारे फर्स्ट वाले सेक्शन में जो टीसीएस का सबसे फर्स्ट सेक्शन है. मॉड्यूल खोलेंगे आपको बिल्कुल सबसे पहले ही दिखेगा जिसमें आपको बोला गया है कि 1% ऑफ योर सेल वैल्यू यू हैव टू कलेक्ट द टैक्स. सो वट एवर सेल्स यू हैव मेड टू XYZ लिमिटेड, अपन एक छोटा सा चार्ट बनाया था ना, कितना बनाया अपन ने, 55 lakhs का 1%. यू हैव टू कैलकुलेट 55 lakhs का 1%, 55,000. चलो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 55,000. अब देखो अगर इसको अपन 2061H की, सब मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपको एग्जाम में नॉर्मली दिक्कत देती है ना. तो हमको 0.1% से अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूं 500 दैट इज सी. तो अगर हम इसमें 2061H अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फिर भी मैच हो जाएगा. बात समझ में आ रही है. तो भले ही हमें अगर एकदम से पढ़ के लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी है तो आ जाएगा, ये तो इस सेक्शन का एप्लीकेशन है, थिंक ट्वाइस. ओके कि कुछ चीज छूट तो नहीं रही है. जैसे इसमें सेल ऑफ कोल है, अगर ये कोल की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट होता तो हाँ बिल्कुल हम 2061H के हिसाब से ही काम करते. लेकिन क्योंकि वहां पर कोल को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है, हमें वो वाला ट्रांजेक्शन, वो वाला सेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. चलिए, Is Messrs BAC required to deduct tax in respect of purchase transactions? Yes, क्योंकि उस केस में TCS की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, 194Q की एप्लीकेबिलिटी आएगी. तो हमारा यस TDS तो अप्लाई होगा. 50 लाख के ऊपर की सेल है और 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, तो यस टैक्स इज टू बी डिडक्टेड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट TDS, अगेन 50 lakhs के ऊपर जो सेल होता है उस पर TDS लगेगा. एंड सेकेंड थिंग, सॉरी, परचेज होता है उस पर TDS लगेगा. एंड सेकेंड थिंग इज क्रेडिट और पेमेंट वाला जो दो केसेस हमारे होते हैं, विच एवर इज अर्लियर. तो ठीक है, सबसे पहले तो अपन टोटल लगाते हैं. यहाँ तो 35 लाख है, यहाँ 35 और 25 कितना हो गया, 60. तो यहाँ से हमारा TDS कटना स्टार्ट हो जाएगा, है ना. इसमें से 50 lakhs माइनस हो जाएंगे, मतलब इस वाले इंस्टॉलमेंट में से, इस वाले ट्रांजेक्शन में से 10 लाख पे TDS लगेगा. बाकी सारे पूरे TDS के परव्यू में आएंगे, 8, 15, 12 एज इट इज. विच एवर इज अर्लियर डेट को पकड़ लेते हैं अपन. क्रेडिट एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पर 30 जून, यहाँ पर 25 अक्टूबर, यहाँ पर 20 जनवरी और यहाँ पर 15 फरवरी. सो ये डेट्स भी हमें ध्यान रखनी है. एंड हर किसी का 0.1%. सो 10 lakhs का 0.1% is 1000. This is our TDS amount. 8 lakhs का 0.1% is 800. 15 lakhs का 0.1% is 1500. And 12 lakhs का 0.1% is 1200. डेट क्या क्या देखी हमने, 30 जून, 25 अक्टूबर, 20 जनवरी एंड 15 फरवरी. चलो तो ये ऑप्शन देख लेते हैं. 30 जून कौन सा वाला है, 30 जून, 25 अक्टूबर, 20 और 15, और अमाउंट भी सारे बराबर है. मेरे ख्याल में ए वाला ऑप्शन ही हमारा मैच हो जा रहा है ना, 1800. हाँ यस, पीछे देख लेते हैं. फोर्थ का आंसर इज ए. यस, थर्ड का भी ए था ना, बराबर. ठीक है. चलो अब लास्ट वाला है हमारा फिफ्थ. आई गेस शायद इसका लास्ट है केस सिनेरियो का. हाँ देखो, assume for the purpose of this MCQ, Messrs BAC company's turnover for the financial year 21-22 was 9 crore. Okay, who will be required to collect tax at source in respect of transactions between Kishore and Sons and Messrs BAC and at what rate? तो TCS की एप्लीकेबिलिटी अपन ने पहले ही चेक कर ली है कि क्योंकि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आपको ये दिया गया है, जनरेशन ऑफ पावर वाला कंसेशन दिया गया है, तो TCS एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर टर्नओवर हमारा उससे कम है तो वैसे भी हम 194Q से भी बाहर हो गए, और क्योंकि दोनों से ही बाहर हो गए हैं तो हमारा आंसर विल बी नीदर किशोर एंड सन्स इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स नॉर BAC इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स. अच्छा एक चीज ध्यान रखो, अगर ये 2061H में आता भी तो भी इस पे 194Q ही लगता. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस, क्योंकि when there is a cross applicability of 2061H and 194Q, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ, आपका टर्नओवर 15 करोड़ है, मेरा टर्नओवर 15 करोड़ है, और मैं आपको सेल कर रही हूँ से फॉर एग्जाम्पल 70 lakhs, तो आपके ऊपर TDS लग रहा है, मेरे ऊपर TCS लग रहा है. इफ देयर इज
the same transaction is covered under both, then 194Q is to be applied. Okay, TDS and TCS. Let us cross check question number 5 ka D. So keep this in mind, yes, that whenever you are checking the applicability of every section, try to interlink the provisions. This is again a very important point. इस MCQ इन सारे केस सिनेरियो से जो हमको सीखने को मिला है वो ये है कि हमें चीजों को इंटरलिंक करके आना चाहिए. मतलब क्या, जब हमने देखा कि सेल हो रही है तो हमारे दिमाग में 2061H आया, सेल कोल की हो रही है तो हमारे दिमाग में 2061 आया, और जब हमने बात करी परचेज भी हो रहा है तो 194Q. अब इनको इंटरलिंक करना हमको आना चाहिए. कब 2061 देखना है, कब 1H देखना है, कब 194Q देखना है, and depending on different conditions you will see what is to be applicable. So just taking a brief overview of this case scenario, that there was a sale of coal, as it is a coal that is to be covered under 2061. However, in one client they have given a declaration that it is for the generation of power, so that becomes outside the purview of TCS, and therefore that becomes under the purview of that comes outside the purview of TCS. In the second client there was no such declaration, that it was trading purposes, so we have calculated TCS. And lastly, we have also checked the applicability of 194Q. Okay, chaliye. Question number 6. Mr. Virat has a house property in Chennai which he let out to Mr. Sumit. For acquisition of this house, Mr. Virat has taken a loan, let out property, ठीक है, at the rate 10%. He has taken a loan of 5 lakhs at the rate 12% on 1st July 22 for repairs. He has not repaid the amount of loan. The amount of interest deduction if he opts for provision for 115 BAC is. थोड़ा सा इन्होंने और डिफिकल्ट बना सकते थे इसको. मैं होती तो इसमें नील का ऑप्शन भी डाल देती, बाकी ठीक है, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा बख्शा है अपने को. सी 115 BAC में देयर इज अ कंडीशन, 24B एप्लीकेबल नहीं है अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो. ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स दे जस्ट मेमोराइज द सेक्शंस कि ये सारे 115 BAC में अलाउड नहीं होते हैं, और हम बहुत बार 24B को उसमें ऐड कर लेते हैं कि 24B का डिडक्शन नहीं मिलेगा. यस, 24B का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इफ एंड ओनली इफ the property self-occupied. If it is let out, the provisions remain same, whether it is BAC or your regular regime. Okay, so यहाँ पर हमारा regular provision लगेगा. अब हमने 30 लाख का लोन लिया है एक्विजिशन के लिए 10% से, तो इस पर हम लगा देते हैं 30 लाख का 10%, दैट इज 3 लाख. और आगे है जुलाई में लिया है, जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 9 months. 5 लाख का 12% इंटू 9/12, तो 5 लाख का 12% इंटू 5 लाख 12% इंटू 9/12, दैट इज 45,000. क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो इसमें कोई लिमिट नहीं लगेगी, whether it is for repair or it is for acquisition or anything. The total interest will be 3,45,000. So option would be C. Let us check question number 6. Option is C. हाँ, ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारा एसओपी का केस नहीं है ना. चलो 7th. Mr. Rishabh, aged 65 years and resident in India, has a total income of 4 crore 50 lakhs, comprising long-term capital gain under 112 85 lakhs, capital gain taxable under 112A 75 lakhs, and other income of 2 crore 90 lakh. सरचार्ज जैसे ही करोड़ों में बात जाए, 50 लाख के ऊपर बात जाए, समझ जाओ सरचार्ज का कुछ तो क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने. What would be the tax liability for assessment year 23-24? And again, there is an amendment in the surcharge provisions. Okay, so there is a possibility, we are not sure, but there is a possibility that yes, surcharge wala amendment se related question hai. Assume that Mr. Rishabh has opted for provisions of 115 BAC. Now see, when you calculate tax, obviously आपका slab rate change हो जाता है in case of regular and in case of 115 BAC. But there is also one more point which is again missed by a lot of people, because it is not much asked or discussed. नॉर्मली हम लोग बात करते हैं स्लैब्स की कि 2.5 लाख इधर भी छूट है, 2.5 लाख इधर भी छूट है, एंड ऑल दोस थिंग्स. बट इन केस ऑफ 115 BAC there is no special treatment for 60 years age and 80 years age. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की. बहुत बार हम लोगों को ये लगता है कि ये जो कंसेशन है ये दोनों रेजिम्स में है. नहीं, जो 3 लाख 5 लाख वाला कंसेशन है वो सिर्फ ओल्ड रेजिम में मिल रहा है.
न्यू रेजिम दैट इज 115 BAC में इट इज नॉट अवेलेबल। हाँ, सरचार्ज का अमेंडमेंट इसमें बोला गया है। इफ यू रिमेंबर देयर वाज एन अमेंडमेंट इन सरचार्ज। एक अमेंडमेंट पहले आया था विच आप लोगों ने शायद नहीं भी सुना पढ़ा होगा, आपने डायरेक्टली अमेंडेड प्रोविजंस ही पढ़े होंगे कि जो सरचार्ज की रेट होती है, सरचार्ज की रेट्स क्या क्या है देखो हमारे 10%, 15%, 25% और 37%। तो कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिन पर आपको मैक्सिमम सरचार्ज रेट क्या लगाना है, 15% है ना। जैसे कि 111A का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर अब से उन्होंने 112 को भी ऐड कर दिया है। ये हमारे पीरियड में अमेंडमेंट आया है कि अब से जो टैक्स ऑन 112 है, मतलब कैपिटल गेन अंडर 112, उसके ऊपर भी मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज जो अप्लाई हो सकता है वो कितना होगा, 15% होगा। ठीक है, सो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो बाकी इनकम पर आप 25 या 37 लगा सकते हो, लेकिन इन इनकम्स की जो टैक्स है उसके ऊपर रेट ऑफ सरचार्ज 15% रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 4 करोड़ 50 लाख का बाइफर्केशन समझ लो। 111A तो है ही नहीं, ठीक है, तो 112A में है 75 lakhs, 112 में है 85 lakhs, and balance that will be taxed as per the slab rates is 2 करोड़ 90 लाख। ठीक है, अब सबका टैक्स लिख लेते हैं पहले तो। ये 112A है 75 lakhs, 1 लाख के ऊपर जितना भी होगा उस पे 10% से टैक्स लगेगा, तो 74 lakhs इंटू 10% आ जाएगा हमारा 7,40,000। देन 85 lakhs, एक सेकेंड, एक जीरो ज्यादा, 7,40,000। Then 85 lakhs पे 20%, 112, that will be 17 lakhs। एंड लास्ट बैलेंस पर स्लैब। अब स्लैब कौन सा लगेगा इसमें, 0 से लेकर के 2.5 लाख तक नील, देन 2.5 से 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 2.5 लाख से स्लैब बढ़ाओ, 5% से टैक्स रेट बढ़ाओ, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, एंड मोर देन 15 लाख 30%, है ना। चलो अपन टैक्स लगा देते हैं। सारे 2.5 लाख रुपए पर 5%, 5% तो 12,500, फिर 10% 25,000, फिर 15% 37,500, फिर 20% 50,000, हाँ 2.5 लाख तक तो मिल है। फिर 50,000 पे और 12,500 ऐड करेंगे, 62,500, एंड लास्ट में 15 लाख के ऊपर तो कितना है हमारा, 2 करोड़ 90 लाख माइनस 15 लाख का 30%, दैट इज 82 lakhs 50,000। लोग टैक्स ही भर रहे हैं इतना, बोलो। 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, 84,37,500 is the regular tax payable। ओके, मतलब कि स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको इतना टैक्स देना है, और ये तो है ही आपका 74 और 7,40,000 और 17 लाख, तो ये तीनों मिला के क्या आ जाएगा टोटल टैक्स। मैं एक बार के लिए लिख देती हूँ टोटल टैक्स, क्योंकि अभी इस पे सरचार्ज लगाना है तो अपने को फिर से अलग अलग ही लगेंगे फिगर्स, बट अपने रेफरेंस के लिए 7,40,000 प्लस 17 लाख, दैट इज 1,08,77,500 का टैक्स, फिर इस पे सरचार्ज। चलो अब सरचार्ज, नॉर्मली वी आर हैविंग एन इनकम ऑफ 4 करोड़ 50 lakhs। सो नॉर्मल हमारी, वैसे तो हम स्लैब कौन सा लगता है 25%, लेकिन इसमें से हमारा जो रेट है वो कौन सा हो जाएगा, 15% वाला आएगा इन इनकम्स के ऊपर, और बाकी जो बैलेंस इनकम है वो भी हमारी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 2 से 5 करोड़ में आ रही है। सो इन दैट केस आवर रेट ऑफ टैक्स विल बी 25%। सो इन दोनों का जो सरचार्ज रहेगा वो लगेगा 15% से, बाकी इनकम के ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 25% से, तो 7,40,000। अभी ये सब्जेक्टिव होता तो इसको हम और पूरा सिस्टमैटिकली सॉल्व करते प्रॉपरली, और नोट वगैरह लिखते कि एज द income is taxable under section 112 and 112A, the maximum rate of surcharge can be only 15%,
सो इसके ऊपर हमारा ये सरचार्ज आया, और बैलेंस इनकम भी अपनी 2 करोड़ के ऊपर जा रही है। देखो अगर ये बैलेंस इनकम 2 करोड़ के नीचे आ जाती ना, फाइनल की आरटीपी में जो क्वेश्चन दिया है वो भी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड। वहां पर वो बैलेंस 2 करोड़ पे आकर के रुक जा रहा है, मतलब अदर इनकम हटा करके, तो वो फिर से हम मतलब पूरे में ही हम 15 में आ गए, तो वो भी ध्यान रखना, पूरे 4.5 करोड़ पे मत ध्यान देना उसको। अदर इनकम जो कि 15% सरचार्ज के अंडर कवर्ड है, उसके बाद जो बच रही है उस पे भी ध्यान देना कि वो ऐसा तो नहीं कि वो और नीचे आ गई है ना, हटाने के बाद। चलो 2 करोड़ 90 लाख का जो टैक्स है वो है 84,37,500 पे लगाते हैं 25% का सरचार्ज। 84,37,500 बोला इंटू 25%, दैट इज 2109375 प्लस 3,66,000 इज 2475375 का सरचार्ज लग रहा है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ आप चेक कर सकते हैं चाहे तो, बट जितना मुझे लगता है 2 करोड़ 90 लाख है, तो मार्जिनल रिलीफ होने के चांसेस तो बहुत ही कम है ना। चलो अब हम टोटल इसका, ये टोटल सरचार्ज हो गया, ये टोटल टैक्स हो गया, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी विल बी टैक्स इज इक्वल्स टू 1,08,77,500, देन सरचार्ज इसमें ऐड करेंगे 24,75,375 का, और फिर इन दोनों का जोड़ देते हैं सेस। आई होप हमारा आंसर सही आए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, देयर इज अ चांस ऑफ सम क्लेरिकल मिस्टेक। 4% 534,115 प्लस इज इक्वल्स टू, तो आंसर आ रहा है 1,3886,990। दिस इज द फाइनल टैक्स पेबल। 1,38,86,990 ऑप्शन तो है ना बच्चों, ऑप्शन तो है, देख लेते हैं सही आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, बिकॉज इतने सारे परसेंटेजेस हैं, कैलकुलेशंस हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एरर, सो लेट अस यस। चलो वाह बढ़िया है ना, सो द आंसर इज बी। लास्ट वन, लास्ट ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। Mr. A engaged in the retail trading of toys had acquired a motor vehicle A for 4 lakhs on 20 August 2020, put to use on 4th of October 2021. Okay. Another motor vehicle B for 3 lakhs on 19th of February 2021, put to use on 3 September 2021, and on 1st of April 2021 took a vehicle loan for 5 lakhs at the rate 10% and acquired motor vehicle C on 31st of May 2021, put to use on 30 June 2021, on 30th of July 22 मतलब हमारे साल same vehicle was sold for 5.5 लाख and reacquired it back again. अरे 20 बार की आरटीपी में बड़े उन्होंने निराले निराले सेक्शंस पे क्वेश्चंस बनाए। रीअक्विजिशन वाला पॉइंट तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आई गेस, ये होता है पीजीबीपी में, हम वो वाला पोर्शन ऐसे स्किप कर देते हैं, उनको पता होता है बच्चा क्या स्किप कर रहा है। पे अटेंशन, आई विल एक्सप्लेन द प्रोविजन, डोंट वरी। फॉर 6 lakhs, assuming the above mentioned assets are the only assets in the block of assets for Mr. A, what would be his total depreciation? Okay, क्वेश्चन तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन ट्रिकी है, ध्यान से समझते हैं। शुरुआत से चलते हैं, क्योंकि एक ही एसेट है ब्लॉक में, तो शुरू से चलना पड़ेगा। अगर ये प्रोविजन आपने पढ़ा है, इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आपको रीअक्विजिशन का केस मालूम है कि उसमें एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, तो आप, इट्स वेरी गुड। बट इवन इफ यू हैव लाइक, अब भूल गए हो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस है नहीं, मॉड्यूल में भी नहीं है, और आज तक बहुत ही मतलब आई डोंट इवन रिमेम्बर, एक आध बार 2 बार कभी पूछा होगा तो पूछा होगा, बट बहुत ही कम बार पूछा गया है पिछले इतने समय में। सो इसीलिए बहुत बार क्या, जो प्रोविजंस आपके बार बार यूज में आते हैं हमको याद हो जाते हैं वो सेक्शंस। तो इवन इफ यू हैव नॉट रेड इट, और इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, और इफ यू हैव लाइक भूल गए हो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट, सो डोंट वरी। चलो सबसे पहला, मोटर व्हीकल 20 अगस्त को खरीदी है। 20 अगस्त 20 मतलब ये हुआ 2020-21। 2020-21 के ट्रांजेक्शन से अपन शुरू करते हैं, है ना, पूरा चार्ट बना लेते हैं। ए खरीदी थी अपन ने 4 लाख की, बी कब खरीदी है 3 लाख ऑन फेब्रुवरी, इसी साल में आ जाएगा ना 20, हाँ बराबर, तो ये इधर ही आ जाएगा 3 लाख। टोटल गाड़ी की कॉस्ट हो गई 7 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्या देखना पड़ेगा, नई गाड़ी खरीदी है
इफ इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज तो फिर आपको 50% डेप्रिसिएशन ही लगाना है, पूरा डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है ना। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल के केस में ये रिटेल ट्रेडिंग ऑफ टॉयज में एंगेज है, ठीक है। मोटर व्हीकल के केस में अगर आप अदर देन यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर हायर एंड ऑल दोस थिंग्स तो आपको फिर रेट लगता है 15% है ना। आप चाहो तो उसमें चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक, मतलब यू कैन रीड दैट प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल। सो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज एप्लीकेबल टू यू इज 15%। अब देखो क्वेश्चन में आपको दोनों की पुट टू यूज डेट जो दी है, एक की है 4 अक्टूबर 21 मतलब अगले साल, और दूसरे वाले की भी है 3 सितंबर 21 मतलब नेक्स्ट ईयर। जिस साल आपने अक्वायर करी है उस साल आपने ये एसेट पुट टू यूज में डाली ही नहीं, यूज ही नहीं करी। The basic conditions of depreciation say that when you read about the conditions ki asset should be owned by the assessee and etc, the very basic condition is that the asset should be put to use by the assessee even for a single day, but it should be put to use. It is not being put to use for even a single day. No depreciation will be allowable for the year 2021. 50% भी नहीं मिलेगा because इसमें आपने इस asset को use ही नहीं किया है, ठीक है। अगले साल अब आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेकेंड ईयर हो गया, तो यू डोंट नीड टू कंसिडर कि इसको 180 डेज से ज्यादा यूज किया या कम। वो कंडीशन सिर्फ अक्विजिशन के ईयर में देखनी होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने यूज ही नहीं किया है, बिल्कुल ही यूज नहीं किया है, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन का। तो ये वैल्यू हो गई 20-21 की। अब आ जाते हैं 21-22 में। तो ये ओपनिंग है, क्या हमने कोई ऐसे खरीदी है, टुक अ व्हीकल लोन एंड अक्वायर्ड ऑन 31st ऑफ मई, अप्रैल मई, हाँ 21-22। अब देखो सी खरीदा है 5 लाख में और लोन लेके खरीदी है। लोन में अगेन देयर इज अ पॉइंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इफ यू आर अक्वायरिंग एन असेट बाय टेकिंग अ लोन, द इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ on which the asset was put to use would be capitalized, and after the asset is being put to use it cannot be capitalized, it has to be taken to the revenue expenditure under section 36। okay, तो हमने लोन लिया है अप्रैल में और हमने पुट टू यूज किया है जून में, अप्रैल मई जून, 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा 10% पर एनम इंटू 3/12। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 3/12 दैट इज 12,500 ऐड हो जाएगा इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से, है ना। तो अब हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 7 लाख प्लस 5 लाख प्लस 12,500 दैट इज 1,212,500। इस और ये एसेट कब खरीदी है अपन ने, जून में खरीदी, नहीं मई में खरीदी, ठीक है, पुट टू यूज जून, तो मोर देन 180 डेज का केस है, तो सीधे सीधे इस पर लगा देते हैं 15% और माइनस कर देते हैं, तो लेस 15% हमारा आंसर आ रहा है 1,030625। ओके, दिस इज द क्लोजिंग वैल्यू फॉर 31st ऑफ मार्च 22। अब हम हमारे रेलेवेंट ईयर में आ जाते हैं। हमारे रेलेवेंट ईयर मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर 22-23। ओपनिंग वैल्यू दी रखी है आपको, कितनी दी है ओपनिंग वैल्यू, देखो 1,030625। कुछ नया तो खरीदा नहीं है, लेकिन इसमें हमने व्हीकल सोल्ड करी है, सोल्ड और सेल का मिक्स हो रहा था कुछ, सोल्ड करी है 5,50,000। तो वेन एवर यू सेल एन असेट, द सेल वैल्यू ऑफ दैट असेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ असेट एंड रीअक्वायर करिए। अब जब आप देखो प्रैक्टिकली सोचो, आपने खुद की असेट बेची और फिर से खरीद ली, तो ऐसा नॉर्मली तो कोई नहीं ही करेगा अनटिल एंड अनलेस कुछ तो उसमें टैक्स प्लानिंग हो रही होगी। मतलब अगर अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे तो जब आपने बेची थी तो फिर खुद की असेट फिर से क्यों खरीदोगे, वो भी ज्यादा पैसे देके। देखो आप देखो क्या लिखा है, सोल्ड फॉर 5,50,000 एंड रीअक्वायर्ड बैक फॉर 6 लाख। तो बेसिकली ये क्यों करते थे एसएससीज कि भैया बेच दो और फिर वापस ज्यादा दाम में खरीद लो, तो उससे क्या होगा, हमको ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा उसी एसेट पर, क्योंकि नहीं खरीद ली। तो department has inserted a specific provision. If you will go in the module and you will see the cases of actual cost, there are different cases of actual cost which are given. In case of reacquisition of an asset, if you have reacquired an asset मतलब क्या, खुद की ही asset आपने पहले बेची और फिर वही वापस खरीद ली, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट के लिए आपको 2 कैलकुलेशंस करने होते हैं। दोनों में से जो फिगर छोटा आएगा वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। तो एक तो आपने एक्चुअली जो प्राइस पे करी, ठीक है, एक चीज तो आप लेते हो एक्चुअल जो प्राइस आपने पे करी, और दूसरा अगर वो असेट आपने बेची ही नहीं होती और
एक अकेली वही असेट आपके ब्लॉक का हिस्सा होती आज तारीख तक, तो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी होती? तो सेकेंड वैल्यू आप लेते हो डेप्रिशिएटेड वैल्यू if that asset was not sold and it was the only asset in the block of assets. Okay, so यहाँ पर आपका एक्चुअल प्राइस तो कितना पे किया है आपने? 6 लाख। इन दोनों में से जो क्या होगा, लेस होगा, that will be the actual cost of the asset which is reacquired in the business. And next depreciated value, तो depreciated value निकाल लेते हैं। एक ही साल का depreciation लगाए है ना, पिछले साल खरीदी थी, तो 5,12,500 पे 15% माइनस करके निकाल लेते हैं हम, कितना आ रहा है? -15%। 435,625 is the value of asset if it would not have been sold. आज ये वैल्यू होती असेट की अगर इसको हमने बेचा नहीं होता तो। ठीक है, तो ये या ये विच एवर इज लोअर, क्या पकड़ोगे? 435,625। तो ऐड करेंगे हम 435,625। ओके, 10625 माइनस 5,50,000 प्लस 435,625, 916,250। इसका लगाएंगे हम 15%, तो आ जाएगा हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, दैट इज 13,743,7.5। तो इसको मैं कर देती हूँ 1 लाख, हाँ ठीक है 1 लाख है, उधर करोड़ों चल रहे थे ना ऊपर। 1,37,438 ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी है क्या? पीछे देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। परफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। सिंपल था क्वेश्चन, बट उसमें थोड़ा सा उन्होंने छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स ट्रिकी बना दिए थे कि अगर पुट टू यूज इस साल नहीं है अगले साल है तो क्या होगा, एंड ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीअक्विजिशन का केस व्हिच इज अगेन वेरी अनयूजुअल। सो इफ आई ओवरऑल गिव अ review on the RTP, that all the questions that have been asked are based on the amendments, positively based on the amendments, but they are quite unusual as well. So एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें बहुत सीखने को मिली है कि बहुत ज्यादा ऐसे भरोसे में मत रहो कि यार इस प्रोविजन में से अगर नहीं कुछ है तो कभी नहीं आएगा। एंड दैट इज ऑलवेज, आई टेल दिस टू माय स्टूडेंट्स ऑलवेज, कि बिल्कुल ऐसे मत करो, बिकॉज ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं जो चीज सोचती थी ना कि यार ये तो नहीं पूछ रहे, ये तो आएगी ही एग्जाम में, फिर तो वो पक्के से आएगी एग्जाम में। सो इसीलिए डोंट अंडर एस्टिमेट ICAI, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। दे हैव गिवन इट इन द बुक, देन दे हैव द राइट टू आस्क इट। So basically just go through the questions. I would suggest first solve them at your own. If not, then this particular video will help you out. If you have any doubts in any of the MCQs or whatever I have explained, if there is any issue, you are not getting any point, feel free to discuss. We can resolve the doubts and queries. And all the very best for your examinations. And apart from ये MCQ भी, अगर आपको आपके सिलेबस में या कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन कैसे होना है, क्या होना है, प्रेजेंटेशन पे भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, I'll share the link along with this video as well. So ऐसा कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, so you can contact, we can solve it out. So all the very best and do your best.